Hello everyone, this is Dr. Asmita Pandey. I did my graduation from Jiangsu University, China, and recently scored 223 in my July FMG exam. Hi, this is Harshad Luthra. I graduated from VNMU Ukraine, and I recently scored a score of 220 in the July FMG exam in my first attempt. Challenges that I faced during my preparation were mainly regarding the minor subjects of final year. For example, anesthesia, orthopedics, dermat. इन सब में ज़्यादा आइडिया नहीं था, मतलब कि मेन लेक्चर्स करूँ या फिर रिविजन लेक्चर्स करूँ. बट फिर उसके बाद सीनियर्स से हेल्प लिया, बैचमेट्स से पता चला कि डूइंग द रिविजन वीडियोस वाज मच बेटर बिकॉज वो क्रिस्प है एंड दैट इज रिक्वायर्ड. सो मैंने फिर रैपिड रिविजन प्रेफर किया एंड फिर उसके बाद क्यू बैंक सॉल्व किए. तो आई मेड इट. रैपिड रिवीजन का मतलब हिसाब ये है कि क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कंसाइज हो जाता है. कंसाइज हो जाता है तो ये आपका टाइम भी बहुत बच जाता है. टाइम बचाएगा तो आपको उतना ज़्यादा ही टाइम मिलेगा क्वेश्चन ज़्यादा करने के लिए. जितना आप क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा आपका स्कोर इंक्रीज होगा, उतना ही एक्सपोनेंशियली आप ग्रोथ इंक्रीज होगा आपका. तो एक हिसाब से ये वो वैसे भी जितनी ज़्यादा रिविजन आप करोगे उतना ही बेनिफिट आपको ही मिलेगा कि उतना ही, क्योंकि मेन एग्जाम में तो आपको सिर्फ वही याद आना है और एग्जाम में सिर्फ यही है या तो आता है या तो नहीं आता. अगर आता तो हो जाएगा आंसर, नहीं होगा तो फिर गया. Starting में for my revision videos, I took around 5 or 6 days for the rapid revision videos, just the lectures. I did around 2 lectures in a day. So मतलब rapid revision में एक subject complete करने में आपको 5 से 6 दिन लग रहे हैं and उसके बाद Q bank करना, 2 दिन आराम से Q bank को time दिया मैंने. फिर उसके बाद almost 10 days I took for one minor subject. Like for anesthesia I took 7-8 days and for orthopedics I took 10 to 12 days. तो ऐसे करके मतलब मेरा 1 month में 4 minor subjects were almost complete. तो क्वेश्चन बैंक्स साथ में करना with the rapid revision videos was very much beneficial for me. In my case, I did half of my questions from the custom module option. I created a question bank in a mixed mode, created some kind of mixed mode of exam. Then I did the exam, and then I watched the videos of the rapid revision. Because rapid revision has only the high yield topics, only the high yield. When you watch the videos, okay, you will come across, okay, this was asked in the question, and you will definitely get your attention. Because if you are only watching the videos directly now, after some time you will get bored and you will miss the point that okay, this might be important, this might be important. And doing the videos, if you are watching the main videos, you will think that everything is important, everything that they're teaching, it's important. But that's not the case. The question comes from only 5 to 10% of the syllabus. Yes, that is true. Doing the custom modules was actually helpful. Like mix bag questions लगा लो आप रोज के 100 questions, especially in the last 2-3 months. Yeah. आप रोज के 100 question कर लो, मतलब custom module लगा लो. And साथ में rapid revision तो is like 1 hour का एक video. So even if you don't feel like studying anything, you can pick up any video from any subject and do that video. And then accordingly you can do the questions or maybe the custom module. So I think that was much helpful. Prep Ladder has recently launched the English version of the rapid revision videos, which I think is much beneficial because sometimes ऐसा mnemonic होता है, तो mnemonic is much more, I think, relatable in Hindi sometimes. And मतलब English में आप उसका फिर एकदम ही आप translate करोगे तो फिर उसका sense कुछ बनता नहीं है sometimes. So I think that is when you toggle between the options. So that is, I think, much easier and helpful for us. क्योंकि कुछ mnemonics are very much relatable in Hindi, I guess. बट प्लस और पॉइंट ये आया था, क्या कहते हैं कि कई बार ना बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं या फिर किसी को इंग्लिश में बहुत सारा दिक्कत आ जाती है. कई बार कंसेप्ट इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं कि क्या कहते हैं उनको समझना इंग्लिश में वाकई बहुत मुश्किल होता है. पर वही कोई ईजी लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज हमारे लिए बहुत नेचुरली आती है हमें, उस लैंग्वेज में अगर कोई कंसेप्ट समझा दे तो फिर सोने पे सुहागा काम हो जाता है. यस. रैपिड रिविजन के नोट्स जो हैं मतलब काफ़ी हैंडी हैं एंड आई मीन आपको जैसे होता है जैसे पैथोलॉजी के आप मेन नोट्स देखिए या मेडिसिन या सर्जरी के इतने थिक होते हैं बट दैट मेक्स यू मच वेरी मच नर्वस. सो आई थिंक रैपिड रिविजन वहीं आप देखो एकदम हाई यील्ड पॉइंट्स हैं स्पेशली एफएमजी जैसे एग्जाम में जहाँ पे आपको हाई यील्ड का ज़्यादा आइडिया होना चाहिए, एटलीस्ट उतना तो आपको आना ही चाहिए. तो वो बुकलेट जब आप देखते हो तो दैट इज़ अ रिलीफ कि हाँ चलो ठीक है इतना तो इज़ डूएबल.
So I think that was helpful, and especially inside the notes, when going through the notes were like so colorful and so pretty. Like you feel like studying when you see the notes. ऐसा ऐसा होता था. तो काफी बढ़िया notes लगे मुझे तो. मेरे लिए उसके अंदर बेस्ट ऑप्शन था कि जैसे मेरे लिए मेडिसिन ऐसे पर्सनली ऐसा रहता है कि मेरे को जब तक किसी चीज़ का बर्ड आई व्यू ना मिले ना, तब तक वैसे नहीं लगता कि मतलब मेडिसिन में समझता हूँ कि क्लासिफिकेशन ज़्यादा मैटर करता है उसके अंदर, पूरी मेडिसिन के अंदर खासकर जब तक आप चीज़ों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाओगे ना, तब तक आप आंसर तक बहुत इजीली पहुंच पाओगे. तो इन नोट्स के क्या है कि बहुत छोटे हैं और इतने कम पॉइंट पे ये इतने अमेजिंग है कि आपको एक बर्ड आई व्यू दे देते हैं पूरे सिलेबस का. आप क्योंकि कई बार आप मेन नोट्स पढ़ोगे, आप पहले इसका पूरा पढ़ोगे, फिर इसका पूरा पढ़ोगे, फिर उसमें आप उलझ ही जाते हो. फिर उसमें फिर आपको आइडिया नहीं रहता कि आपने पहले क्या पढ़ा था, फिर बाद में क्या पढ़ने वाले हो. छोटे छोटे पढ़ के आपको रहता है कि हाँ चलो इसके अंदर 5 आ गए, इसके अंदर 4 आ गए, पूरा आपके अंदर बड़ा ही बन जाता है. हाँ, फॉर द स्टूडेंट्स आई वुड लाइक टू से दैट जैसे जिनके पास अभी 6 मंथ्स है, लाइक 6 मंथ्स भी नहीं एक्चुअली 5 मंथ्स है दिसंबर के लिए, तो उनके लिए तो रैपिड रिवीजन इज द गो ऑप्शन. मतलब कि आप रैपिड रिवीजन पे स्टिक करो एंड उसके बाद आप नोट्स करो उसके अच्छे से. एटलीस्ट डू द नोट्स 2-3 टाइम्स. रैपिड वीडियोस आप लेक्चर्स एक बार देख लो, नोट्स कर लो 2-3 बार. दैट वुड बी एनफ. एंड क्वेश्चंस लगाते रहो. क्वेश्चंस लगाना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. बाकी जिनके पास अभी टाइम है, 3rd-4th ईयर में जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आई वुड से कि फोकस मोर ऑन द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पार्ट. सो इतना ही नहीं सोचना कि हाँ ठीक है मेरे पास अभी टाइम है, जो भी है तो कर सकते हो आप. अभी आपके पास टाइम है तो मेन वीडियोस, मेन लेक्चर्स, मेन नोट्स पे आप कॉन्सेप्ट बिल्ड अभी करने पे फोकस करें. मतलब जिसके बाद 4-5 महीने भैया, आप तो ज्यादा टाइम वीडियो लेक्चर से बिता ही नहीं सकते. जितने आप क्वेश्चन करोगे उतना फायदा होगा, जितनी जल्दी आप सिलेबस खत्म करोगे उतना जल्दी आपका फायदा होगा. 3 से 4 बार आप सिलेबस खत्म कर लोगे वीडियो लेक्चर से, तब भी उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना आप 3 से 4 बार डिफरेंट क्वेश्चन ट्राई कर लोगे. तो जितनी जल्दी आपका सिलेबस खत्म होगा उतना फायदा है. तो इसलिए रैपिड रिवीजन तो कमाल हो जाएगा. सो ऑल द बेस्ट एवरीवन. थैंक यू. बेस्ट विशेस. थैंक यू.